Starting with second chapter. Name of chapter is what? Work and Name power. of chapter is Energy work, and power. energy and power. जिसमें से in this class we will be doing only work, power और energy का just definition. Energy के ऊपर और भी deep में we will be doing in the next class. Okay. Okay. Oh. So here you can see what is this girl doing? Reading. Reading. जैसे अभी आप लोग सब लोग कर रहे हैं, ठीक है? But ठीक है, रीड करिए, अभी आगे नेक्स्ट देखते हैं. Here also this man is thinking. This guy, boy is doing something on the computer. And here this girl is trying to push that box, but वो इतना heavy है that he is not able to push. She is not able to push. Right? So in all these four cases, you can see that they are doing some work. जैसे अभी आप लोग भी कुछ वर्क कर रहे हो, तो आप लोग सुन रहे हो, दिमाग में प्रोसेस कर रहे हो. I don't know सच में प्रोसेस कर रहे हो कि नहीं, बट सब लोग प्रोसेस कर रहे हो, right? That is what I am assuming. So in all these cases, they are doing some work, but physics के definition में none of them are doing any work. फिजिक्स बोलता है कि ये चारों वर्क नहीं कर रहे हैं. क्यों? अब देखते हो नेक्स्ट स्लाइड पर पता चलेगा. नाउ हियर यू कैन सी वो बॉय वाज स्ट्रांग इनफ कि उसने उस बॉक्स को पुश किया. इससे लिखा हो हाँ. सो ही वाज स्ट्रांग इनफ टू पुश दैट बॉक्स. अब क्या हुआ? उसने पुश किया मींस ही अप्लाइड व्हाट सम फोर्स. बिकॉज ऑफ दैट फोर्स हमारा एक्शन क्या हुआ? द बॉक्स मूव्ड. इट displaced it from its position. So this boy has done some work, because in terms of physics work is done only if there is displacement because of the applied force. Force apply करने में कहीं पे भी movement होगा तो work done है. So we can say work is said to be done only when the force applied on a body makes the body move, or you can say if the force applied on the body displaces the body, that is there is displacement of the body. So जब हमने पहले एग्जांपल देखे थे, यहाँ पे आप देखोगे कहीं पे भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, वो पढ़ रही है but there is no displacement. Here also he is thinking, and here वो कुछ तो कर रहा है, कंप्यूटर में देख रहा है, but he is not displacing. Here also she is trying to displace but नहीं हुआ उससे. So in all these cases they are doing no work. So, अगर मूव करते हुए मैंने दिखाया होता then I would have said कि वो वर्क कर रहा है, वो मूव कर रहा है. But here I am not, उसे just होल्ड करके रखा. ठीक है? So फिजिक्स के टर्म्स में आप लोग अभी कोई भी कुछ काम नहीं कर रहे. None of you are doing any work. ठीक है? Now, so definition of work: amount of work done by a force is equal to the product of force and displacement. हमने देखा दो चीज था, एक तो वो लड़का he was applying force, and because of that force what was the effect? Displacement of the boy. So दो thing थी ना, one is applied force, second is displacement of the point of application, displacement of the body in the direction of point of application of force. Correct? So वर्क का क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी रिप्रेजेंट बाय S. So वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. यूनिट क्या हो जाएगा? ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर होना चाहिए, लेकिन वर्क को एक अलग से यूनिट है, दैट इज कॉल्ड जूल. Joule, symbol capital J. ठीक है? So that is the unit of work. Now here you can see this man is dragging the ice. देख लो. ठीक है? Force कौन से डायरेक्शन में यहाँ पे? Towards left. हाँ, लेकिन एकदम एक लाइन में है क्या? नहीं ना, ऐसा है ना? थोड़ा है. Slant है ना? ऐसा force is applied in this direction. Displacement is in this direction, right? So force is in this direction, displacement is in this direction. So मैं इसको देखती हूँ तो it will be force is in this direction, displacement is in this direction. तो मैंने उसको separately drop कर दिया. Force and displacement. That means here I
force and displacement के बीच में I have some angle, we say it as theta. So in this case, work is equals to force into displacement into cos theta. ठीक है? Cos of this angle. क्यों? आपको बताओ क्यों? अगर हम लोग ने डेफिनेशन में देखा था amount of work done is equal to product of magnitude of force and the displacement in the direction of force, तो अगर ये यहाँ पे displacement है तो अगर मैं कोई इसको in the direction of force देखना है तो क्या हो जाएगा, या फिर मैं बोलती force in the direction of displacement अगर मेरे को करना है, so what we do is we divide this in two component. force को अगर फोर्स इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो रहा है, मतलब उस फोर्स का कुछ तो इफेक्ट है जिसकी वजह से वो उस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है. सो दैट इफेक्ट इज ड्यू टू सम कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स. उस फोर्स का कुछ तो पार्ट, कुछ तो कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में आ रहा है. सो वी कॉल इट एज, इफ आई नेम दिस एज ए बी सी, आई विल से दैट कंपोनेंट एज फोर्स अलोंग लाइन ए बी. हाँ वही बता रही हूँ, वही क्लियर कर रहा हूँ. ठीक है, बट जब ये हम कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं तो इसको हम दो कंपोनेंट में हमेशा डिवाइड करते हैं. एक ऐसे में है तो दूसरा इसके परपेंडिकुलर होगा. ठीक है, सो ये फोर्स को हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर रहे हैं. कंपोनेंट वही मैं बोलूँ ना, जब अगर ये फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा है पर डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो रहा है, ये कैसे हुआ? अभी तो आइस वाला एक्सपेरिमेंट को वो समझा नहीं कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अलग अलग क्यों है. वो डायगोनल जो और डिस्प्लेसमेंट वो ऐसे आ रहा है. ये देखो क्या होता है, आपने वो टॉय देखा जिसमें बच्चे लोग नीचे बैठे रहते हैं टॉय में एंड उसका एक रॉड रहता है जिसको हम पकड़ के खींच के चलते रहते हैं. रॉड के ऊपर मैं फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई करूँ, इस डायरेक्शन में, लेकिन टॉय में बैठा हुआ बच्चा किधर डिस्प्लेस होता है, ग्राउंड में. तो डायरेक्शन ऑफ माय फोर्स इस डायरेक्शन में होता है क्योंकि मैं रॉड ऐसे अप्लाई कर रही हूँ और मेरा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है. तो वैसे ही एग्जांपल था ना अभी जो आइस में भी, वो आदमी ऐसा खींच रहा है वो रोप को और आइस डिस्प्लेस से हो रहा है. फोर्स इस डायरेक्शन में था, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में था. क्लियर? तो मतलब अगर फोर्स इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो इस फोर्स का कुछ तो सम इफेक्ट है इस डायरेक्शन में जिसकी वजह से वो ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव हो रहा था. तो वो जो इफेक्ट है उस फोर्स का थोड़ा सा कंपोनेंट या थोड़ा सा पार्ट जो इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है उसको हम डिवाइड करते हैं एफ ए बी बोलते हैं. फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी, नॉट नेसेसरी ए बी बोलेंगे, अगर मैंने इसका नाम बी सी दिया होता तो एफ बी सी हो जाता. राइट? एंड जब हम डिवाइड करते हैं तो सिर्फ एक कंपोनेंट में नहीं डिवाइड करते, हम लोग उसको दो कंपोनेंट में, एक उसके परपेंडिकुलर में भी डिवाइड करते हैं. दैट इज हाउ. मैम अगर वो बी और ये होता तो एफ बी ए. हाँ, डिवाइड क्या? डिवाइड मीन्स उसको हम पार्ट कर, ब्रेक करते हैं. फोर्स को ऐसा ब्रेक कर रहे हैं कि मेरे को फाइंड करना है फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. कितना फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, कौन से फोर्स की वजह से ये इस साइड में डिस्प्लेस हो रहा है. बट मैम अगर डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट रूट हुआ ना, शॉर्टेस्ट पाथ, वो अलग, वो आप वो हाइपोटेन्यूज वाला वो वाला सब में देख रहे हो, दैट इज डिफरेंट. यहाँ पे हम लोग पूरा वेक्टर के साथ ही खेलते हैं. जब आप बोल रहे हो वो हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के साथ प्ले करते थे तो वहाँ पे एक स्केलर एक वेक्टर रहता है. यहाँ पे हम लोग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर के साथ ही प्ले कर रहे हैं. सो वी आर नॉट पुटिंग इन दैट केस, उसमें मत जाओ. ठीक है, और इसका फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है. वो कैसे आया वो बता रहे. ठीक है, ओके. सो दिस आई हैव डिवाइडेड इनटू एफ ए बी एंड यहाँ पे एक और एफ आएगा, ये भी दूसरा एफ. बेसिकली हम बोलते हैं ये पैरेलल डायरेक्शन में और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के साथ वाले को हम डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल डायरेक्शन में और दूसरा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर किया. क्योंकि जब हम एक, अच्छा एक्चुअली क्या होता है, आप लोग को इतना डीप में नहीं है, मैं सिर्फ ऊपर से बता रही हूँ. हम लोग वेक्टर्स के लिए, वेक्टर्स को जब सॉल्व करना होता है तो जो नॉर्मल हम अलजेब्रा में करते हैं या ज्योमेट्री में करते हैं वो नहीं यूज करते. वी हैव सेपरेट वेक्टर अलजेब्रा. वेक्टर अलजेब्रा करके हम लोग को एक अलग से सेक्शन है जो आप आगे जाओगे जिस 11 12 है उसके भी आगे, तो उधर आपको
रहता है, तो उसमें हम हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं मोर देन वन वेक्टर। सो बेसिकली हम उसको दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। वेक्टर अलजेब्रा के हिसाब से जो हम लोग एडिशन करते हैं, नॉर्मल एडिशन क्या हो जाता है, दिस प्लस दिस हो जाता है ना। बट वेक्टर अलजेब्रा में हमारे पास दो मेथड है एडिशन करने का। फर्स्ट इज ट्रायंगल मेथड, ये वेक्टर आ जाएगा। हाँ, और दूसरा है पैरेललोग्राम मेथड। ट्रायंगल मेथड के हिसाब से क्या होता है पता है, अगर ये एक वेक्टर ऐसा है और दूसरा वेक्टर ऐसा एक्ट हो रहा है, तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट जो वेक्टर रहेगा दैट विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। ये वेक्टर अलजेब्रा बता रहा है। दूसरा है पैरेललोग्राम मेथड, जहाँ पे अगर एक वेक्टर ऐसे एक्ट कर रहा है, दूसरा एक्ट कर रहा है, तो उसका रिजल्टेंट जो रहेगा दैट विल बी एक्टिंग एज अलोंग द व्हाट डायगोनल्स ऑफ दिस। तो ये ऐसा, सो दिस विल बी एक्टिंग डायगोनल। इसको पैरेललोग्राम को अगर मैं कंप्लीट कर दूंगी तो डायगोनल निकलेगा ना। बट इतना आपको डीप में नहीं है, इसलिए मैं आपको पूरा वेक्टर अलजेब्रा में जा नहीं रही हूँ। वी आर नॉट गोइंग इनटू वेक्टर अलजेब्रा। आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू कि इसको हमने टू कंपोनेंट में डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज एफ ए बी एंड एफ अलोंग द परपेंडिकुलर। ठीक है, नाउ यू नो इफ आई ड्रॉ दिस परपेंडिकुलर and this angle is theta, trigonometry तो हो गया। What is cos theta? इस ट्रायंगल में adjacent upon hypotenuse। हाँ, तो इस ट्रायंगल में बताओ क्या आएगा cos theta equals to F upon S। AB upon AB upon BC। अब मेरे फोर्स के कंपोनेंट के हिसाब से क्या हो जाएगा, AB में कौन सा कंपोनेंट है फोर्स का, FAB upon F और BC का F। So I can say FAB is equals to what? F cos theta, है ना? Yes. Now I said work done is equals to product of force into displacement. अगर फोर्स मेरा ये है along the direction of displacement, so this will become what, W equals to F cos theta multiplied by S, because of what I got F S cos theta। वो FF कट नहीं हो सकता। हाँ, सही नहीं होगा। ये FAB है, ये इक्वल वैल्यू नहीं है, FAB मीन सम अदर वैल्यू। मुझे लगा वो AB के साथ मल्टीप्लाई। नहीं, ये F सबस्क्रिप्ट में A, F इन द डायरेक्शन ऑफ A। समझ में आया मतलब यू गॉट नाउ कि FS cos थीटा क्यों है, बिकॉज़ वी आर अप्लाइंग ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में cos थीटा इज एडजेसेंट, मींस ये एंगल के एडजेसेंट में जो साइड है डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। यस, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास है ये वैल्यू FAB एंड आई हैव हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट डायरेक्शन हाइपोटेन्यूज किसका फार्मूला है हमारे ट्रिग्नोमेट्री में, cos थीटा का ना, दैट्स व्हाई आई यूज्ड cos थीटा। तुमको पता है। हाँ, हाँ ओके, आगे यहाँ पे F cos थीटा क्यों डाला इन प्लेस ऑफ F, राइट? ओके, नाउ दिस वाज द केस जहाँ पे मैंने वो देखा बॉय इज पुशिंग, बॉय का फोर्स इस डायरेक्शन में था and my displacement was also in this direction, that means what, force and displacement parallel थे, तो उन दोनों के बीच में, पैरेलल के बीच में एंगल कितना होता है, 0। cos 0 कितना हुआ, cos 0 1। तो फिर मतलब W equals to FS था उस केस में, लेकिन यहाँ पे हमको पता है कि ये किसी एंगल में है, force and displacement is in some angle, so our definition of work done is what, force multiplied by displacement in the direction of force। so that means मुझे हमेशा force multiplied by वो वाला लेना है जो in the direction of displacement है। आपने B एक नहीं लिया, F B है। ये लिख सकते हो, वो मैंने जस्ट ऐसे चलो। along में भी यार ये, हाँ मैम वो फोर्स के साथ cos थीटा हो रहा है तो फिर S डिस्प्लेसमेंट के साथ कैसे चला गया वो? नहीं, मैंने जस्ट इसको नेम ली है, F into cos theta into S, तीनों मल्टीप्लिकेशन में, so I can write F into S into cos theta। मैम FAB, F मतलब A वाला फोर्स और FAB मतलब AB वाला। हाँ, F means this force and FAB is the component of this part of this, F में आपने FAB का क्यों सब्स्टिट्यूट? because नहीं, this is
not that. ये basic formula of force. वर्क डन. Normal formula. हमने first time लिखा था. FAB को W भी लिख दिया. हैं? किधर FAB को W लिखा? FAB is equal to F cos theta लिखा आपने. हाँ. उसके बाद आपने सीधा W is equal to F cos theta. W is equals to F into S. First equation था मेरा. So F की जगह पे सिर्फ F cos theta लिखा है. तो FAB को कहाँ डाला? अरे FAB डिस्प्लेसमेंट ही है ना. हाँ. ये दूसरा AB का तो आपने FAB FAB का डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन. हाँ, right. तो उसके लिए मैंने S लिख दिया. मेरे को यहाँ पे लिखना चाहिए था FAB. तो समझ में आता है. FAB अब डिस्प्लेसमेंट हो गया. मैम FAB is equals to F cos theta. हाँ. So this is FAB equals to F into cos theta. यहाँ पे होगा FAB. अब ठीक है. सुनो रुको मैं बताती हूँ. मेरे को डस्टर तो पहले बता दो. I'll just explain this whole thing one more time. मैम S ही है. डिस्प्लेसमेंट FAB पे है. अच्छा हाँ तो ऐसे होगा. चुप ना. ठीक है मैं फिर से बताऊँ. देखो. Tell me what is the definition of work done? F into displacement. नहीं पूरा definition exact word के साथ. The amount of work done का definition text book में देखो और मैं Amount of work done by a force is equal to the product of the force and the displacement of the point of application of the force in the direction of force. हाँ फिर से बोलती हूँ. Amount of work done is equals to Fs. नहीं statement के हिसाब से amount of work done equals to Product of the force. product of wait धीरे जाओ. Product of force and The displacement of the point of application of force in the direction of force. so displacement in the direction of force लिखा है. हाँ. या force in the direction of displacement मतलब दोनों same direction में होना चाहिए. So force in the direction of displacement. हाँ. Force in the direction of displacement is FAB हाँ. and displacement is S. Right? अब Got it now. अब इस ट्रायंगल में मैं पाइथागोरस ये अपना cos थीटा लगाऊंगी. FAB opposite adjacent upon का लगेगा वो नहीं लिखेंगे. कौन सा ये F नहीं वो force ये है. Here I have that force. So FAB is equals to what? हाँ. FAB Into cos theta. F into cos theta. हाँ वो जो FAB है वो यही लाइन का है. हाँ ये वाला और FAB. वही डिस्प्लेसमेंट भी है. हाँ तो दोनों एक ही लाइन में होना चाहिए ना डेफिनेशन के हिसाब से भी. हाँ. इसलिए मैं ये वाला ही लूंगी. I won't take this one. ओके बोले. ठीक है. So अब यहाँ पे मैंने trigonometry यूज करके I have found out what is the relation between F and FAB. हाँ. So FAB is equals to what? F cos theta. अब ये जो F है this is this force हाँ. Substitute. Multiplied by S. Yes. So we get F into S into cos theta. समझ में आया? Now in place of component F का force का divide करने की जगह पे we can also divide the component of displacement in the direction of F. ऐसे भी कर सकते हैं. या तो F को कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट केस में ले लो या तो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट F के टर्म पे लो. तो इसलिए आपके टेक्स्ट बुक में वैसे भी दिया है. सो आई गो विद टेक्स्ट बुक नाउ वंस. एक डायग्राम में टेक्स्ट बुक के हिसाब से आपको बना के दिखाती हूँ. यू अंडरस्टूड दिस पार्ट राइट? स्टिल एनी डाउट? नो डाउट? क्लियर? Where is my text book? So, in textbook, expression of W work with respect to दो मेथड है. by finding the component of displacement along the force. So first is by finding the component of displacement. मतलब अभी क्या करने वाली मैं displacement को डिवाइड करूंगी दो पार्ट में. along the force. ये क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हमारा वर्क डन का स्टेटमेंट क्या बोलता है? डेफिनेशन अमाउंट ऑफ वर्क डन उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए. इसलिए हमको ये पूरा करना पड़ रहा है. ठीक है. सो सेम डायग्राम आई जस्ट ड्रॉ. सो आई हैव दिस इंक्लाइंड लाइन एंड दिस इज माय ग्राउंड. ठीक है.
So here I have A, B, C. So block is like this and applying force at this point. Force is applied at this point to move this from here to here. मेरे को बताओ अब इसके हिसाब से मेरा ये किस डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट? ऊपर के डायरेक्शन में. So this is my displacement, that is S. And force मेरा उन्होंने दिया है इस डायरेक्शन. So displacement हमेशा force के opposite में है. Not necessarily, यहाँ पे opposite नहीं है, angle बना है. If this angle is theta, और मैं यहाँ से मैं इसको perpendicular बना दूँ. ठीक है? So tell me, I need to draw displacement का component in the direction of force. So क्या हो जाएगा इस part को मैं ये in the direction of force हो गया, displacement in the direction of AB. Force का direction AB है, so displacement in the direction of AB. तो इसके साथ एक और perpendicular भी बनाना पड़ेगा जैसे मैंने बोला था. So here I am having displacement which is perpendicular to AB. ठीक है? Okay. Now same way यहाँ पे ये theta ये दोनों parallel है, so this angle will be theta. है ना? So इसको इधर लेने की जगह पे मैं इसके along ही बना देती हूँ, इसमें confusion हो जाएगा इसलिए. ठीक है? So that मेरे को naming करने को easy हो जाए. So this is SAB and this is my S. इसको मैं रब कर दूँ, confusion नहीं होना इसलिए. This I am just rubbing to avoid confusion. चल, यहाँ से पूरा S है, ये SAB है. फिर से क्या हो गया adjacent और hypotenuse. So cos theta equals to what? SAB upon S upon AC के log S है ना? So S. So L get S equals to what? SAB cos theta. So work will be equals to what? Force. Force इससे था. SAB भी इसी डायरेक्शन में है. So F into SAB. So which is equals to F into. एक मिनट ये मैंने गलत लिख दिया. This is SAB equals to S. So this will be S cos theta. ठीक है? Any doubt? ये था SAB equals to this will come here ना? SAB equals to S cos theta. So SAB की जगह पे S cos theta. So I'm getting W equals to F cos theta. तो पहले वाले में मैंने क्या किया था? फोर्स का कंपोनेंट डिवाइड किया था. इस वाले में मैंने क्या किया? डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट डिवाइड कर दिया. क्लियर? क्यों पर? क्योंकि या तो आप फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लो या फिर डिस्प्लेसमेंट को फोर्स के डायरेक्शन लो. हमको दोनों का सेम डायरेक्शन. So अभी दोनों कौन से डायरेक्शन? अभी दोनों इस डायरेक्शन में. SAB भी इसी डायरेक्शन में, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में. ठीक है? दोनों सेम डायरेक्शन में होना चाहिए. फोर्स के डायरेक्शन में होना चाहिए. और पहले दोनों डिस्प्लेसमेंट. हाँ, पहले दोनों डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन. क्लियर? ठीक है.